Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hello, my name is Shagun and you're watching Learn with Shagun. So 2 or 3 people had requested this Wecker's process video on my channel, and here I have come up with this video, little late but still I have. So here's a little disclaimer for you all. If you want any of the videos regarding chemistry, particularly organic chemistry, the naming reactions in a very systematic and clear way, some of the videos are already uploaded by me, and if you want any of the videos particularly regarding any topic, you can request the video on my channel and I'll upload it. So let's get back to the Wecker's process. Without any ado, let's get into it. Wecker's process is nothing but an oxidation method in which we oxidize the terminal alkenes, or we can say olefins, by using palladium or copper compounds as catalyst, and along with that we have to use oxygen and water as reactants. Okay, and here by oxidizing the alkenes we get carbonyl compounds as products, which may be aldehyde or ketone. Okay, what is the desired product? It's aldehyde, or maybe we can get ketone over here after oxidation. So I have written the general statement of Wecker's process right here, जिसमें हमारे पास एक एल्कीन है which is in its structural form. एल्कीन को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है by using this palladium compound and this copper compound, by the addition of water and oxygen we get a carbonyl compound. Right here it is aldehyde. Depending upon what reactant you have taken or what compound you have taken, what kind of alkene you have taken, you may get aldehyde or ketone right here. Okay, the variation of the product goes with the reactant you have taken. I hope it is understood. Now you may wonder कि यहाँ पे दो catalyst use किए गए हैं, which is a palladium compound and second is the copper compound. Okay, so catalyst, one of the catalyst which is the palladium chloride right here is the main catalyst which actually performs the alkene coordination to give the desired product, जो कि carbonyl compound है. यही perform करता है basically, main catalyst यही है. इसी ने अपने साथ alkene को coordinate करना है to give us this carbonyl compound. What does this copper compound, copper chloride, does right here is it acts as a co-catalyst. What does it do? Its job is to regenerate the main catalyst. जब भी we know that जो catalyst होता है it regenerates after the process is completed, but this palladium chloride right here, palladium compound right here, it doesn't get regenerated automatically by itself. So it needs this copper chloride to regenerate this palladium chloride, ताकि जो हमारा जो process है without any interruption it gets going on. I hope the basic idea of the process you have understood कि catalyst किस तरीके से use किए जाते हैं. We will discuss the structure of the catalyst later, but I hope the basic idea here, what is the desirable product, what things are you gonna use right here, is clear till now. अब हम आगे चलते हैं. Now guys, what I have already told you was a general statement of what you are going to use and what you are going to get as a product. Now स्पेसिफिकली हम चीज़ें लेके चलते हैं. हमने बोला कि हम एल्कीन लेने वाले हैं और हमें रिजल्ट में एक एल्डिहाइड या कीटोन मिलने वाला है. तो किस तरीके से मिलेगा वो देख लेते हैं. हमारे पास अगर तो आप एल्कीन, सिंपल एल्कीन लेते हैं जो कि सिमेट्रिकल है राइट हेयर, आपने इथीन लिया है, जैसे इथीन में पैलेडियम क्लोराइड, वाटर का एडिशन है अलॉन्ग विद द कॉपर क्लोराइड एंड ऑक्सीजन विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ वेकर्स प्रोसेस, तो आपको ईजिली जो है वो इथेनॉल मिल जाएगा. नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग the product right now, we are not going into the process. I'll tell you ये सब कैसे होता है bit later, लेकिन बस अभी हम देख के, अगर आपको इक्वेशन, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के लिए है ये वीडियो या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन अगर 12th के बच्चे भी इसे देख रहे हैं तो यू नीड टू टेक केयर. आपको अगर प्रोडक्ट प्रिडिक्शन आ जाता है कि आपके पास इथीन है और वेकर्स प्रोसेस में आप ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इससे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन इफ़ यू गेट. सो यू हैव टू राइट इथेनॉल, क्योंकि आपको कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ही मिलने वाला है, कार्बोनिल प्रोडक्ट जो है. तो यहाँ पे आपको इथेनॉल मिला है बाय द ऑक्सीडेशन, राइट.
अब क्योंकि द थिंग विच इज़ अटैकिंग इज़ वाटर विच इज़ गonna रिएक्ट विद इट, तो वाटर जो है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इस रिएक्शन में। तो वाटर के पास दो एंटिटीज़ होती हैं, एक प्रोटॉन होता है H+ और एक OH नेगेटिव होता है, राइट। नाउ OH नेगेटिव ने अटैक करना होता है, वही ऑक्सीडेशन में बेसिकली पार्ट लेता है। तो जनरली अगर मैं बताऊँ, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप प्रिडिक्ट करें अभी सिर्फ कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन करवा रहा है यहाँ पे OH आपका, तो वो जो है यहाँ पे सिंपली किसी के साथ भी जाएगा, अगर इस कार्बन के साथ भी जाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड, या इसके साथ भी जाएगा, तभी आपको इथेनॉल ही मिलेगा प्रोडक्ट में, विच इज़ एन एल्डिहाइड सिंपलेस्ट, राइट। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एल्कीन यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अनसिमेट्रिकल, और आपको नहीं पता है अब कि मैं कहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन करवाऊँ, या प्रोडक्ट मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो आपको बस मार्कोनिकॉव रूल याद में रखना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कि व्हाट डज मार्कोनिकॉव रूल सेज। यही कहता है ना कि इन केस ऑफ एडिशन, जब भी किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के ऊपर रेडिशन होती है, एल्कीन के ऊपर रेडिशन होती है इस केस में, तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का जो हम ऐड करें, जो कि यहाँ पे वाटर है, वो कौन से कार्बन को जाता है, डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन होता है उसी को जाता है। जैसे इन दोनों में से डबल बॉन्ड इसको नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड के अराउंड ये वाला कार्बन है इसी को जाएगा, मतलब या इसको जाएगा या इसको जाएगा। लेकिन डिसाइड कैसे करें कि दोनों में से किसको हम ऑक्सीजन दें। ऑक्सीजन उसको दें जिसके पास जो है वो कम हाइड्रोजन, विच इज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन टू इट, ठीक है। मार्कोनिकॉव रूल यही कहता है ना, विच इज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आप उसी को देते हैं। वो भी रिएजेंट अटैक कर रहा होता है, उसका नेगेटिव पार्ट उसी को दिया जाता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जाएगा, और इस तरीके से आपको एक कीटोन मिलेगा रिजल्ट में, विच इज़ प्रोपेनॉन राइट हियर, राइट। सो प्रोपीन यूज़ किया है तो प्रोपेनॉन ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्शन आराम से कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या बनने वाला है। तो इसीलिए हमने जनरल स्टेटमेंट में भी ये लिखा था कि या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने ले क्या रखा है, अपना रिएक्टेंट क्या ले रखा है। अब हम मैकेनिज़्म देखते हैं इसका। इफ़ यू सी माई वीडियोज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यू नो कि मैं जितने भी मैकेनिज़म्स होते हैं वो स्टेप्स में करवाती हूँ, विच इज़ रियली ईजी टू कॉम्प्रिहेंड। So basically I have created 5 major steps right here for this reaction, जिसमें सबसे पहले एल्कीन कोऑर्डिनेशन होगा। जो आपका एल्कीन है वो जो कैटलिस्ट आपने ले रखा है जिससे पैलेडियम क्लोराइड है उसके साथ के कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। कौन कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, पहले अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे करेगा, ओके। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में बीटा हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा, वो मैं उसमें दिखाऊँगी आपको कि पूरे जब हम मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे कैसे होता है बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर। फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन है फोर्थ स्टेप में, मतलब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि आपको जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो चाहिए था वो मिल गया होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये भी, इसके भी फर्दर 2 सब पार्ट्स हैं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के भी 2 स्टेप में होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वो मैं बताऊँगी आगे। और फिर फिफ्थ स्टेप में ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, यहाँ पे आपका कैटलिस्ट रीजनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपर कंपाउंड। इसका यही पर्पस है यहाँ पे कि पैलेडियम वाले को रीजनरेट करना है इसने। सो गाइज, दिस इज़ द एंटायर वेकर्स प्रोसेस। आई हैव समड इट अप फॉर यू। हम देखते हैं कि मैकेनिज़्म में ये जो 5 स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे बताए थे उसमें हर एक स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। और आई बेट यू दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेकर्स प्रोसेस, यू विल फाइंड इट ऑन इंटरनेट राइट नाउ। सबसे पहले तो आपका ये था पैलेडियम का जो कंपाउंड था, जो कि पैलेडियम क्लोराइड है, विच इज़ इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके साथ जो है आपका एल्कीन जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप आई हैव रिटन इज एल्कीन कोऑर्डिनेशन। सो इसमें क्या होता है कि जब एल्कीन का एडिशन होता है तो इसका एक क्लोरीन जो है यहाँ से निकल जाता है, जिसकी जगह पे ये एल्कीन जाके इसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाता है। वेरी इजी, फर्स्ट स्टेप में बस एडिशन ही करना, अपने एल्कीन को कोऑर्डिनेट करवाना है। नाउ इन द सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है विच इज़ डन बाय वाटर। सो यू नो कि वाटर के पास जो वाटर है इट गेट्स स्प्लिट इनटू अ प्रोटोन, जो आपका H+ आयन होता है, साथ में इसके पास एक OH नेगेटिव होता है। अब ये जो OH नेगेटिव होता है ना, दिस पर्टिकुलरली अटैक्स राइट है। तो OH नेगेटिव का देखते हैं। अभी मैंने इसीलिए ये सब कुछ अलग अलग कलर से इंडिकेट किया ताकि आपको पता चल जाए कि
किसका पार्ट जो है वो कहाँ पे जा रहा है। अभी वाटर को रेड से इंडिकेट किया है तो यू विल क्लियरली नो कि ये जो OH गया है यहाँ पे इसके पास जो एल्कीन के साथ जाके अटैच हुआ है वो वाटर से ही आया है, वाटर का ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में इसका जो नेगेटिव जो पार्ट होगा वो जाकर अटैक करेगा। तो व्हाट डज इट डू इज़ कि ये इसका OH नेगेटिव जो है वो यहाँ जाकर अटैक करता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इसकी जो डबल बॉन्ड है ना उसे अब एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेता है, गेटिंग अटैच्ड राइट हियर। तो इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगी और इसकी फिर CH2OH बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यही आपके पास प्रोडक्ट आ गया है। अभी ये जो आपका कंपाउंड आया है इसका आगे फर्दर बीटा हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है। बीटा हाइड्राइड ट्रांसफ़र में क्या होगा, अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे वन ऑफ द हाइड्रोजन्स जो हैं यहाँ से इस आपके पास इस वाली एंटिटी से वन ऑफ द हाइड्रोजन्स जो हैं वो जाएंगे और क्लोरीन को किसी एक को रिप्लेस कर लेंगे। जैसे इसके ट्रांस में जो क्लोरीन है पर्टिकुलरली उसको रिप्लेस कर रहा है ये इसका बीटा। इसीलिए बीटा क्यों कहा गया है, बीटा इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये दिस वुड बी अल्फा एंड दिस वुड बी बीटा। तो बीटा पोजीशन पे जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो जाके यहाँ पे फिर ट्रांस पोजीशन पे जो क्लोरीन है उसको रिप्लेस कर लेगा। Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया और इस तरीके से ट्रांसफर। नाउ यू कैन सी कि कौन सा हाइड्रोजन गया है, दैट्स व्हाई आई हैव रिप्रेजेंटेड इट विद द ग्रीन कलर कि यहाँ पे ये इस जगह से गया, कोई बाहर से नहीं कहीं से हाइड्रोजन आके क्लोरीन को रिप्लेस करके चला गया, ठीक है। तो इसीलिए इसे बीटा हाइड्राइड ट्रांसफ़र कहा जाता है क्योंकि बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन गया है वहाँ पे। अब देखो दोबारा से यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गई है क्योंकि अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया तो फिर उसको कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश करना पड़ना था यहाँ पे ना। आप एक चीज़ देख रहे हो, मैंने बताया नहीं क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में बहुत बार बताया कि ये डाईहैप्टिक बॉन्ड होती है जिसमें कोई भी कार्बन जो है वो डायरेक्टली पैलेडियम के साथ कनेक्टेड ना होकर ये पाई सिस्टम जो है इनके बीच का वो जाके जो है वो बॉन्ड बनाता है इसके साथ, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड होती है डबल बॉन्ड में और एक सिग्मा बॉन्ड होती है। तो ये जो पाई सिस्टम है वो जाके इसके साथ एक बॉन्ड इस्टेब्लिश करता है। इस तरीके की बॉन्ड्स को डाईहैप्टिक बॉन्ड्स कहा जाता है, राइट। बहुत बार मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में, दैट्स व्हाई इट गॉट स्किप्ड फ्रॉम माय माइंड टू टेल यू ऑल। सो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड दोबारा इस्टेब्लिश कर लिया है यहाँ पे। नाउ सी अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसमें दो सब स्टेप्स होंगे, ठीक है। बीटा हाइड्राइड ट्रांसफ़र के बाद आप देखोगे कि दो सब स्टेप्स होंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। पहले तो क्या होगा, हाँ जो क्लोराइड आयन है यहाँ पे एक क्लोराइड जो रिलीज़ हुआ था सिस्टम में वो सिस्टम में ही प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो ये क्या करेगा अब यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन की जो है वो जगह ले लेगा यहाँ पे। अब हाइड्रोजन का जब उसने जगह ले लिया है यहाँ पे क्लोरीन ने तो हाइड्रोजन दोबारा से आकर यहाँ पे जो है वो CH3 बना दिया। लुक यहाँ पे CH2 था, नाउ इट हैज़ गॉट CH3, ओके। वो वहाँ से क्लोरीन जब ऐड हो गया तो यहाँ पे नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों हुआ, पहले वहाँ से डिटैच करे वही चीज़ फिर वही ऐड कर दे रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना एक चीज़ कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कार्बन OH बियर कर रहा था वो पैलेडियम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था नहीं यहाँ पे। अब ये सब जो है बार बार जो एलिमिनेशन एडिशन ट्रांसफर्स ये जो हुए हैं दैट हैज़ हैपेंड ड्यू टू द रीज़न कि पैलेडियम के साथ ही एट वन स्टेप जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा आकर वो कार्बन विच वुड बी बियरिंग दिस OH, ठीक है। तभी जो है वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे अब देखो ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गया तो पैलेडियम के साथ भी ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है। नाउ अब ये वाली जो एंटिटी होगी ना दैट विल गेट ब्रोकन डाउन कम्प्लीटली टू गिव द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ओके। सो अब हम देखते हैं कि ये कैसे टूटती है। ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, अभी मैं बता देती हूँ कि कैसे इसका ब्रेक डाउन होता है। अब देखो इसका ब्रेक डाउन कैसे होगा ना, ये OH इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ना लिखकर इस कार्बन के साथ इस तरीके से कनेक्टेड करके लिख दूँ ये OH है ना, ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको ब्रैकेट में ना लिख के ऐसे लिख देती हूँ और आगे CH3 तो है ही है। तो अब क्या होगा कि आपका ये जो क्लोरीन है ना ये क्लोरीन ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि ये इसका हाइड्रोजन लेना चाहता है HCl बनाने के लिए तो ये अपना बॉन्ड यहाँ से छुड़ाकर इसके साथ HCl बनाना चाहता है तो इसके ऊपर अटैक कर रहा है। अभी ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन तो प्रोटॉन बन के जाता है तो ये अपना बॉन्ड छोड़ के जाता है तो फिर ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से फिर ये आपका कार्बोनिल बन जाएगा बॉन्ड,
फिर आपके पास क्या होगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है आपकी C डबल बॉन्ड O, एक तरफ इसके H है और आगे CH3 है। तो ये क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका एल्डिहाइड। तो देखो ये बना आपका CH3 CHO, वही CHO CH3, ठीक है। तो दिस इज़ द एल्डिहाइड जो आपको चाहिए था। HCl यहाँ पे ये बन गया, और बाकी के जो बचे हुए 2 क्लोरीन होंगे वो भी यहाँ से छूट के चले जाएंगे और पैलेडियम बेचारा अकेला रह जाएगा ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको रीजनरेट करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली यू सॉ कि ये रीजनरेट नहीं हुआ, ये तो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। अब आपको चाहिए कि सिस्टम में दोबारा ये वाला बन जाए ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे, एक ही बार में रुक ना जाए। सो लास्ट में हमने ये डिस्कस किया कि पैलेडियम कंपाउंड जो है वो ऑटोमेटिकली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रीजनरेट कर नहीं सकता, तो उसके लिए कॉपर कंपाउंड यहाँ पे यूज़ किया जाता है विच इज़ द क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके, सो क्यूप्रिक क्लोराइड जो है जब वो कन्वर्ट होता है आपका क्यूप्रस क्लोराइड में, ओके, क्यूप्रिक क्लोराइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस क्लोराइड। नाउ दिस thing will help to the palladium zero oxidation state catalyst to get converted into its original form, which is the -2 oxidation state. Now this cupric chloride which got converted into cuprous chloride, that also needs to get converted back cupric chloride, ताकि ये साइकिल चलता रहे, एक ही बार में नहीं रुक जाए। तो उसको कन्वर्ट होने के लिए भी ऑक्सीजन जो है वो जो आपने यूज़ किया था रिएक्शन में, ऑक्सीजन हेल्प करता है उसे वापस ऑक्सीडाइज करके रिटर्न करने में अपनी ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओरिजिनल फॉर्म में क्यूप्रिक क्लोराइड को। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक स्मॉलर साइकिल चलता है जो ऑक्सीजन की हेल्प से चलता है, वो उसे दोबारा से अपनी क्यूप्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करती रहती है। और ये जो कन्वर्जन है ये हेल्प करता है आपके पैलेडियम जो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है कन्वर्ट करने में अपनी ओरिजिनल कैटालिटिक फॉर्म में। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वेकर्स प्रोसेस. If you found this video helpful, stay tuned to the channel for more videos like this. Share to your friends. Thanks for watching.